Big appeal. Appeal without any conviction, so they will get a single. Damo, the bowler Damo, a very good bowler, and he has to defend a very, very low total. All three bowlers, in fact, just 26 runs. Leg byes. So once again, Damo will be ready, bowling to Siddesh this time. This is very good piece of cricket here from Siddesh and Rajesh. They are going for the second run, and there is slight miscommunication, but miscommunication has not hurted them at all. They are going for the third run. It's like Usain Bolt and Justin Gatling running for the 100-meter race, and both the batsmen, in fact, easily complete the third run. Very poor piece of cricket here from the fielders of Viking 11. Bowler is bowling well. You can see it was just a soft hands. He always wanted a single or a double, and he converted that single into 3 runs. Very good piece of running between the wickets by Rajesh and Siddesh. This time, good shot in the air and taken. Very nicely taken catch here by the fielder. So Munna is going to be the new man, but he will be at the non-striker's end. 4 for the loss of 1. We are into the first over. Target is 26. Siddesh will be on strike. Let's see whether he goes for the 6. And once again, he is trying to play the deft touch for singles and doubles. Somewhere, someone has to go after the bowling. This time, once again, he plays with soft hands in the covers region for only a single. Good piece of bowling here from Damu. Score moves on to 5. Who is going to be the team that is going to enter into the semi-finals? Mind you, we are playing in the floodlights, and playing in the floodlights is not easy. Sometimes you have to adjust. Oh, this is a wonderful scoop shot here. A great scoop shot. Reminded me of Tilakratne Dilshan in international cricket. 4 runs. Boundary score moves on to 9. It was Dilshan who introduced this scoop shot in international cricket. And now it's been tried by Siddesh. Wonderful short ball. And wide signal by umpire. So score moves on to 10. 1 ball left in this over. Damu is not happy, but umpire's decision is final and binding. They are not favoring any side. They are the jury officiating this match out in the middle. Oh, this is good piece of bowling. Change of pace. Slow ball will finish over number 1. It's a 10 for the loss of 1. Arif. Well, Arif is a multi-talented facet, doing the job of Adnan Sami single-handedly with the song and also with the keyboard. The Adnan Sami of Goa is doing a very, very good job over here. Once again, he doesn't want to give any dot balls. That's a very good idea here from the batsman Siddesh. He wants to convert each and everything into runs.
With that single score moves on to 11. Another 15 runs required of 11 balls. Can they cross over their target? And this time, once again, flick of the wrist. Siddesh running the first run very fast. He's going for the second run and misfield. Is it going for the boundary? Yes, it does. Oh, everything happening on the ground. Pressure, pressure, and pressure. These are knockout matches. These are pressure cooker situation, and one who handles the pressure will only go into the next round, into the semi-finals. This time, once again, flick of the wrist. Once again, they are going for the second run, and this is wonderful running between the wickets. This is what everyone on this ground must learn from these players. They are not going for the sixes. They are playing very, very smart cricket here. Intelligence used here by both these batsmen. You got a score moves on to 17. 9 runs required. Very good piece of cricket. Well. It is the application of mind that converts man into a gentleman. And this is a gentleman's game. And it's a wonderful head above the shoulders of both these batsmen who are converting and taking twos and converting into threes. They are not going for the glory shots of sixes and boundaries. They are just playing simple, pure, plain cricket. 9 balls, 9 runs. Run a ball target. This time straight down the ground, only a single. And they are going for the second run. Are they going for the second run? No, this is absolutely poor cricket. This is all going haywire. Absolute haywire stuff here from all the fielders. I don't know where he was throwing. Maybe sometimes when you are not used to floodlight, your eyes get dim. You feel that there is a player over there. But it was not. It was just a pure fiction. This is in the air. This should be taken. Who is taking the catch? And finally, keeper takes the catch and wicket goes down.
Oh, this is poor piece of bowling here. Where is the ball heading? Is he going for one more run? We have to wait for umpire signal. This is poor cricket, misfielding everywhere, and big appeal, and we are going for the third umpire. Let us see what is the third umpire up to. Umpire, what is the soft signal? Umpire, what is the soft signal? Soft signal from your side. If there is inconclusive evidence, white signal by umpire. If there is inconclusive evidence, then what is the decision of the main umpire will stand. आउट आहे हां बहुत ओके ओके नो इश्यू वाईड आणि एक रन मारे 2 रन काढले तो 4 रन द्याय पडले हां रन आउट झाला तर 4 रन द्याय पडले ना तो बोला. So soft signal from the umpire is out. So now we are waiting for the decision from the third umpire. If there is a conclusive evidence, third umpire will give the decision. Otherwise, if there is inconclusive evidence, the decision from the main umpire will stand. Not out. So decision is not out from the third umpire. He has made it well in. So Mohit Naik adjudicating the third umpire, and he has done a very good job looking at different angles of the camera, and finally he has decided it will be not out. So 3 runs and not a single ball has been bowled. So 3 runs required of 6 balls. 3 runs required of 6 balls. I think the fielders has to converge in now. Fielders has to come inside to stop that singles, because Siddesh, with the way the batting skills he has done, he has not taken any risk and he is only taking singles. So fielders have to converge in and stop those singles. Pritesh. This time, wonderful shot in the air, and he's taken the catch. The Siddesh is back in the pavilion, trying to go for that big shot. So Latesh will be at non-striker's end, and non-strike will be Paresh. They have to get just 3 runs of 5 balls. Only a miracle can save a Viking 11 at this stage. Only a miracle. This time, what a shot! What a stunning shot! This reminded me of Hardik Pandya. Skillful, tactful, powerful. And that's it.
Bhuto Warriors have entered into the semi-final. Congratulations to Bhuto Warriors for entering into the semi-final. Commiserations to Viking 11. Over to Arif. Love yourself for something important. Gorda anczego karaci, jakie są zaraz na dosłownie paci, maciami na biele turystaci, susara gastarango wasaraci, maciami na biele turystaci, susara gastarango wasaraci, Bhagwa amchi, to shanti kaichi, Bhagwa amchi, kushal punyatul karachi. Ulala hullo, ulala hullo, ulala hullo, ulala hullo, ulala hullo, ulala hullo. Belgrad szólni szedett golványata, Gucci szívitlet polóna csapszáta, Nyoltatag a pánkélén szólhat ráta, Csittori gyúl fölímán kösebzáta, Nyoltatag a pánkélén szólhat ráta, Csittori gyúl fölímán kösebzáta, Szigóa amcsi, Bhagwa amchi, Bhagwa upunta shanti kaichi, Bhagwa amchi, Bhagwa kushal punyatul karachi. Ulala hullo, ulala, ulala hullo, ulala hullo, ulala, ulala hullo. Ulala hullo, ulala, ulala hullo, ulala hullo, ulala, ulala hullo. Gorda anczego karaci, jakie są zaraz na dosłownie paci, maciami na biele turystaci, susara gastarango wasaraci. Maciami na biele turystaci, susara gastarango wasaraci. Thank you. धन्यवाद हरीफ जी, बढ़िया। आप हर बार की तरह अब एक गाना सुनाते हुए हमारे दर्शकों को, जी हाँ, गोवंश सॉन्ग, बढ़िया। हमारी गोवंश लैंग्वेज है कोंकणी, उसी लैंग्वेज में एक बढ़िया गाना सुनाया। धन्यवाद जी। हॅलो, जी आता पहिली मॅच जाल्ली, आमच्या स्कोररा कडल्यान आमकां इनपूट मेळ्ळा मुन्ना भूतो वॉरियर्साचो एका मॅन ऑफ द मॅच म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा. मागता आमच्या मिडिया सेक्शनांतलो तरुण भारत हो सांग्यार जो आमी वाचता, सांग्या वयल्यान जे रिपोर्टिंग जाता आमचे मदीं आसा तिळवे, आनी तिळवे कडेन मागता आमी मॅन ऑफ द मॅच भूतो वॉरियर्साचो मुन्ना एका जे बेस्ट परफॉर्मन्स केल्ले आसा ताका लागून मागता भूतो वॉरियर्साच्या मुन्नाक माचेर येवपा खातीर.
धन्यवाद अमित जी। जी हाँ, मैच शुरू होने जा रहा है। उसी के पहले मैं हमारे दो धुरंधर हेलो। मशहूर कमेंटेटर सर मागता- हरीश काकोडकर और साई एक मिनिट उनका मैं धन्यवाद टेलवेकडे करना चाहूंगा। मागता की जे परफॉर्मन्स केल्ले आसा मुंदान प्रिवियस मॅचीक हांगा मेडल दिवन तेजे स्वागत करपा खातीर तशेंच कॉंग्रेच्युलेशन मुंदा द अचिवमेंट तुमी केल्ले आसा. थँक्यू. ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू अमित जी। जय इस इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। गेंदबाज अपने हाथ में गेंद लेकर दौड़ लगाने के लिए जारी है। देखते हैं पहले गेंद पर बल्लेबाज किस तरह से स्वागत करते हैं गेंदबाज का। जहां धीमी गति की शुरुआत, 1 रन जरूर मिलेगा। ऑफ साइड पे कट किया है और अच्छा तालमेल, 2 रन भी पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। कुछ खिलाड़ी है फ्लड लाइट के बीच पहली बार क्रिकेट खेल रहे हैं तो दिक्कत का सामना जरूर हो सकता है कुछ खिलाड़ियों को। दो रन के साथ शुरुआत की है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, फिर भी झट दिया। सीमा रेखा के बाहर गेंद को पहुंचाने में माहिर हुए बल्लेबाज। पहले गेंद में 2 रन, उसके बाद छक्का झट दिया ऑफ साइड पे। बढ़िया स्ट्रोक। 2 गेंद के बाद 8 रन हो चुके हैं। बढ़िया गेंदबाजी, फिर एक बार रन निकालने की कोशिश तो जारी थी लेकिन सफल नहीं हुए। बढ़िया स्लिप पर गेंद रोकते हुए फील्डर। के बीच अच्छी गेंदबाजी करते हुए कुणाल। छक्के के बाद वापसी बढ़िया। जहां बिल्कुल सटीक गेंद थी, 1 रन मिलेगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 रन पूरा किया लतेश ने। जहां मैं बात कर रहा था मशहूर कमेंटेटर सर हरीश काकोडकर। काफी बार मैं उनका आवाज सुन चुका हूं। यूट्यूब पे जितने मैचेस होते हैं, बड़े बड़े लीग होते हैं, वहीं पर उनका आवाज सुनाई देता है। उनको इनवाइट किया जाता है। पहली बार मैं उनको सीपीएल में उधर देखा था, कुंगखोली प्रीमियर लीग। हमारी जो मैच चल रही थी कुंगखोली पीएस दौरान, खुद वही कमेंट्री कर रहे थे। और इसी के पीछे एक बड़ा झटका लगता हुआ साई शक्ति वॉरियर्स की टीम को। डायरेक्ट जो भी उनके सामने कठिनाई का सामना आता है वो अच्छी तरह से करते हैं और कम समय में इंतजाम करते हैं। अच्छी यहाँ पर सेटअप लगाया है, अच्छी यहाँ पर तैयारी करते हुए हमारे दर्शकों को आनंद लेने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है। ऐसा लग रहा है कि एक आज बड़ा त्योहार है, एक फेस्टिवल है क्रिकेट के जरिए। क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि लोगों को जोड़ता है और लोग जुड़ते हैं। हमारे जो खुद घर में फंक्शंस पार्टियां होती है तब लोगों को इनवाइट करना पड़ता है, लेकिन क्रिकेट में इनवाइट नहीं करना पड़ता। यहाँ पर लोग खुद बाय खुद जुड़ते हैं और मैचेस का आनंद लेते हैं। धन्यवाद करना चाहूंगा सभी दर्शकों को। बड़ी तादाद में आप यहाँ पर मौजूद है। जितने तादाद में आप दिखाई देते हैं उतना ही टूर्नामेंट को मजा आता है। ये लाइव देखा जा रहा है यूट्यूब पे। काफी लोग देख रहे हैं आप लोगों को। मैं हमारे कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि एक बार दर्शकों के साथ एक कैमरा घुमाइए, जो लाइव देख रहे हैं वो भी देख पाए यूट्यूब पर
कितने दर्शक इस श्रृंखला को देखने के लिए मौजूद है। थैंक यू। जी हाँ, सबको दिखाइए एक बार। एक ओवर के बाद 10 रन हो चुके हैं। एक विकेट के नुकसान पर 10 रन हो चुके हैं एक ओवर के बाद। एक महामुकाबला देखने को मिलने वाला है कुछ समय के बाद। 14 तारीख को आगाज हुआ था इस श्रृंखला का, आज अंजाम होने वाला है और वही मुकाबला देखने को मिलने वाला है कुछ समय के बाद। हर टीम तो हर खिलाड़ी चाहते हैं फाइनल में पहुंचना, काफी मजा आता है तो फाइनल जीतना। तो धीरे धीरे एक टीम बाहर हो रही है तो एक टीम जीतकर अगले राउंड में प्रवेश कर रही है। रमाकांत 2, बढ़िया शुरुआत, कोई रन नहीं मिलेगा। काशीनाथ को यहां पर एक बड़ी पारी खेलनी होगी अपनी टीम के लिए। यहां पर हारेंगे तो आगे मौका नहीं है आप लोगों के लिए, बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। पहली इनिंग है इस मैच की। यहां ऑफ साइड पे खेला है, पीछे फील्डर मौजूद, कवर के साइड में खेला हुआ था, स्ट्रोक एक ही रन मिलेगा। और गेंदबाजी के लिए आए हैं रमाकांत, आसानी से मौका देते नहीं, हल्की सी गेंद स्विंग भी करवा देते हैं। बल्लेबाज पड़ने में थोड़ी सी देरी करते हैं, चतुर गेंदबाज रमाकांत। और अंपायर फैसला देते हुए लेग स्टंप के बाहर गेंद जाती हुई, वाइड का इशारा। दुनिया में ऐसे कितने सारी गलियां तो कितने सारे रास्ते हैं कि आप यू टर्न मार के बच सकते हैं, लेकिन क्रिकेट में आप बच नहीं सकते। एक बार हाथ से गेंद छट गई तो यहां पर फैसला आना ही है, वही फैसला अंपायर देते हुए वाइड का इशारा। हम दोपहर से चाहते थे एक बड़ा मैच देखने को मिले, मैचेस तो बढ़िया हो रही है लेकिन 70-80 रन नहीं किसी ने निकाले हैं 3 ओवर में। यहां पर भारी किनारा जरूर लगा है लेकिन कैच नहीं हो सकती। लेग बाय इशारा अंपायर करते हुए। तेरह रनों पर बल्लेबाजों ने साई शक्ति वॉरियर्स का स्कोर पहुंचा दिया है, सिर्फ 13 रन। बिल्कुल जड़ में गेंद फाइनल की तरफ जाती हुई, अंदरूनी किनारा लग के। हर कोई अमित नाइक को कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। बढ़िया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया अमित ने, एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट इस मैदान पर करते जा रहे हैं और किसी ने नहीं सोचा था कि आज फाइनल हो सकता है ये फ्लड लाइट के बीच, लेकिन अमित ने करके दिखाया। यहां पर उठाने की कोशिश है लेकिन जोरदार अपील बॉलर द्वारा, अंपायर पर दबाव बनाने की कोशिश है लेकिन अंपायर कहां डरने वाले हैं, अपने फैसले से डटे रहे। बड़े अंपायरिंग कर रहे हैं बड़े टूर्नामेंट में और काफी हमारे इस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट हुए, काफी खुश होंगे, इस तरह की टूर्नामेंट में खेलना पसंद करते होंगे और मजा भी लिया है उन्होंने। 14 तारीख को आगाज हुआ था इस श्रृंखला का, 20 दिन की लगभग राह देखनी पड़ी फाइनल मुकाबले की और इस एक मुकाबले के लिए, फाइनल मुकाबले के लिए बहुत सारे मैचेस खिलाए गए, उनमें से धीरे धीरे एक टीम आगे बढ़ती हुई। देखना होगा कौन 2 टीम है वो फाइनल में
खेलने वाले हैं। इस इनिंग की अंतिम ओवर लेके आए हैं मिस्टर उमेश। स्ट्राइक फॉर लतीश, लेफ्ट हैंड गेंदबाज और फाइनल की तरफ घुमा दिया है, लेकिन बढ़िया कैच लपकते हुए लतीश की कैच लपक लिया और वापस भेज दिया लतीश को। सिर्फ 15 रन हो चुके हैं अब तक। साई शक्ति वॉरियर्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 15 रन अभी कुछ भी नहीं है। यहां पर बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी, बड़े बड़े हिट्स लगाने होंगे। यहां पर थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है बल्लेबाजों को। गेंद को देखने में समय जाता है। फ्लड लाइट्स के बीच पहली बार कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनके लिए जरूर होगा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड गेंदबाज उमेश चकमा देते हुए बल्लेबाज को हल्की सी स्विंग देखने को मिली और कीपर के हाथ में भेज दिया। कोई भी रियलिटी शोज बड़े बड़े होते हैं, वहीं पर कंपेयरिंग भी बढ़िया करेंगे तभी शो हिट्स होते हैं। डांस तो करते ही है। इसी के बीच अंपायर इशारा देते हुए वाइड का, दोनों हाथ कंधों के लाइन पर उठाते हुए और इशारा पूरा किया। कोई रोक नहीं सकता, ना कोई काट सकता इस इशारे को। बड़ा फैसला है अंपायर द्वारा। जी, हम कंपेयरिंग की बात कर रहे थे, वैसे ही जब बड़े बड़े कमेंटेटर आपके बीच होते हैं, बढ़िया कमेंट्री करते हैं, उतना ही टूर्नामेंट भी हिट होता है। दर्शक सुनना पसंद करते हैं, अच्छी बात है। तो बढ़िया कमेंट्री, और इसी के बीच हमारे पास दो मशहूर कमेंटेटर जुड़ गए, हरीश काकोडकर सर और आत्मानंद पेडनेकर सर। फिर एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं। आत्मानंद पेडनेकर को तो मैं पहली बार मिला हूं, लेकिन हरीश सर को तो मैं 2 बार आवाज सुन चुका हूं। हाल ही में साउथ प्रीमियर लीग एट मोलेम, वहीं पर एक बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, वहीं पर भी मौजूद थे। बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑफ की तरफ रोक लिया है और दूसरी रन की मांग और पूरे करते हुए और एक रन की मांग की है और यहां पर आउट होना पड़ेगा। अच्छा थ्रो। इस इनिंग का पूरा स्कोर है सिर्फ 18 गेंदों में 21 रनों की जरूरत जीतने के लिए। यहां पर डिफेंड करते हुए साई शक्ति वॉरियर्स को जीतना है तो बढ़िया गेंदबाजी करनी होगी। यहां पर सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि ये तो मैच सावित्री वॉरियर्स अच्छी तरह से जीत लेंगे, लेकिन देखना होगा साई शक्ति वॉरियर्स के गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। सावित्री वॉरियर्स के गेंदबाज जो गेंदबाजी के लिए आए थे, 3 गेंदबाज कुणाल, उमेश, रमाकांत, बढ़िया योगदान दिया अपने टीम के लिए। काफी खुश होंगी उनकी पूरी टीम, उनके कप्तान। इस तरह की गेंदबाजी करना अच्छा लगेगा सभी खिलाड़ियों को, उनके टीम्स के जितने मेंबर्स हैं। अभी अगली इनिंग देखना होगा किस तरह से यहां पर मैच देखने को मिलेगा। सावित्री वॉरियर्स आसानी से जीत सकती है, लेकिन गेंदबाजी किस तरह से होती है वो देखना होगा।
हेलो 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 हमारे बीच मैडम सावित्री खवड़ेकर पहुंच गई है। मैडम, बड़े दिल से आपका स्वागत है इस मंच पर। सभी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं बड़े दिल से। प्लीज माफी के साथ शुरुआत करना चाहूंगा, टेक्निकल इशू था। तो इस इनिंग की शुरुआत हो चुकी है। 21 रनों का लक्ष्य था साई शक्ति वॉरियर्स के सामने। दो गेंदों के बाद सिर्फ 1 रन निकाल पाए हैं बल्लेबाज। स्वप्न स्ट्राइक पर थे और फील्डर को ढूंढ लिया और हाथ में दे बैठे गेंद। यहां पर देखना होगा, कुछ रिएक्शन तो देखने को नहीं मिल रहा है। शायद कैच होती है तब जोश में नजर आते हैं खिलाड़ी। यहां पर टप्पा जरूर खाया था बैट के नीचे गेंद ने, उसी के वास्ते यहां पर नॉट आउट दिया है। गेंदबाज उमेश लेफ्ट हैंड गेंदबाज, कठर गेंदबाज। स्ट्राइक पर थे स्वप्नेश, कुछ खास कर नहीं पाए इस गेंद पर। अंदरूनी किनारा लग के पीछे गेंद गई। कोई दबाव नहीं बल्लेबाज के ऊपर, आसानी से मैच जीत सकते। रन बॉल भी यहाँ पर निकाल देते हैं तो धीरे धीरे आगे लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। उसी के बीच एक बड़ा हिट भी लगा सकते हैं, लेकिन देखना होगा। विराज एक बड़े बैट्समैन है और झट दिया छक्का लॉन्ग ऑन की तरफ। क्रिकेट के दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बड़ा शॉट, इससे बड़ा शॉट कोई है नहीं। उसी को पूरा करते हुए मिस्टर विराज भेज दिया गेंद को स्टैंड्स में। डीजे प्लीज। लगातार दूसरा हिट विराज के बल्ले से और अंपायर दोनों हाथ आसमान की तरफ दिखाते हुए 6 रनों के लिए। बिना आंखें चिपका के तुझको बस तेरी कमर पर मेरा फोकस करे कि रोज करे कि तू मुंह वाके इतना बता देती भी मुझको बस 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 तेरी और ना होता है सबर मुझको। सात रनों का लक्ष्य बचा हुआ है जीतने के लिए। 12 गेंदें बची हुई है। ऑर्गेनाइजर्स के पीछे एक बड़ा हाथ होता है इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, और वो हाथ है हमारे स्पॉन्सर्स का। जितने स्पॉन्सर्स हैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा सभी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स की ओर से। खास तौर पर हमारे बीच मौजूद है
मैडम सावित्री खवड़ेकर जी, धन्यवाद मैडम, बड़ा सपोर्ट रहा आपका इस श्रृंखला को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और सर हॉनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री बाबू खवड़ेकर जी, धन्यवाद सर आपको भी। खराब शुरुआत, वाइड गेंद पहले ही देखने को मिली। इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबला होने वाला है, उसके बाद एक महा मुकाबला, उसी की राह देख रहे थे सभी टीम, सभी खिलाड़ी, तो सभी दर्शक, और उसी की राह देखते देखते उसके ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा, उसके पहले एक सेमीफाइनल मुकाबला होगा। हौसला मत हार ए मंजिल के मुसाफिर, हौसला मत हार ए मंजिल के मुसाफिर, जख्म तुझे यहाँ मिला है तो दवा भी तुझे यही मिलेगी। देखना होगा खिलाड़ी किस तरह से प्रदर्शन अपना दिखाते हैं इस मुकाम तक अपने टीम्स को पहुंचाने के लिए। जितनी टीम्स बची हुई है अब बाहर होंगी तो दुख तो जरूर होगा। यहां पर जोरदार अपील और अंपायर ने सीधी उंगली ऊपर उठाई है, आउट होकर वापस लौटना होगा। बढ़िया गेंदबाजी, 16 रनों पर पहुंची है टीम साई शक्ति वॉरियर्स। सिर्फ 5 रनों का लक्ष्य बचा हुआ है। उसके बीच विकेट गंवाते हुए बल्लेबाज स्वप्निल। इस टीम के लिए एक बड़े खिलाड़ी है बल्लेबाज विराज, अब तक क्रीज पर है। एक मैच पिछला देखा था, 6 रनों के साथ मैच का रुख बदल दिया था, फिनिशिंग किया था, 6 रन के साथ मैच को जीत दिलाने में सक्षम हुए थे। यहां पर कैच हो सकते हैं और लपक लिया, फील्डर को ढूंढ लिया और शॉर्ट मिड विकेट पर तैनात किया था कप्तान ने फील्डर को, और वहीं पर आधे आधे कैच देकर बैठे और वापस लौटना होगा। यहां पर कुछ घर का मामला होता या दोस्ती का होता तो जरूर मौका मांगते बल्लेबाज, लेकिन सबके सामने इस तरह का मौका नहीं मिलता है। आउट तो आउट ही है। अगली जो गेंद है वो हैट्रिक बॉल होगी। 2 बॉल में 2 विकेट ले चुके हैं। काशीनाथ ने अपनी शुरुआत तो वाइड गेंद से की थी, उसके बाद बढ़िया वापसी, 2 विकेटें भी यहां पर लेते हुए अपने खाते में। और हैट्रिक बॉल और स्ट्राइक पर है बल्लेबाज सिद्धांत। देख रहे हैं फाइनली की तरफ, क्या उसी दिशा में खेलना चाहेंगे? गेंदबाज ने तो जरूर पढ़ लिया होगा, उस हिसाब से गेंद करना चाहेंगे जिस तरह से बल्लेबाज के दिमाग में जो चल रहा है उसके विपरीत। पीछे डीप मिड विकेट पर फील्डर लगाया है। सिंगल यहां पर जरूर मिलेगा, मिस फील्डिंग की है। जीतने के लिए सिर्फ 4 रनों का लक्ष्य बचा हुआ है। अभी स्ट्राइक पर है विराज, फिर एक बार बड़ा हिट लगाकर अपने टीम्स के लिए जीत दिलाने में सक्षम होते हैं या नहीं देखना होगा। उसके सामने रहेंगे काशी गेंदबाज। जो YouTube पे लाइव प्रसारण हो रहा है, जितने लोग YouTube के माध्यम से इस मैच को देख रहे हैं वो भी ताज्जुब होंगे कि किस तरह से टूर्नामेंट हो रहा है। इतना अरेंजमेंट बढ़िया तरीके से अमित द्वारा, काफी लोग सरप्राइज होंगे। फिर भी अमित पीछे नहीं हटे, पूरा अरेंजमेंट करके यहाँ पर इस मुकाम पे फाइनल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।
इस ओवर की अंतिम गेंद काशी द्वारा। चीनी सिंगल निकालने की कोशिश, लेकिन बिल्कुल संपर्क नहीं, गेंद जाकर हाथ में बैठ गई कीपर के। ऑफ स्टंप पे गेंद डाली थी। यहाँ पर काशी ने रोक जरूर लगाई है। आखिरी ओवर देखना होगा कप्तान किस गेंदबाज को भेजते हैं, क्या मैच दिलाने में योगदान रहेगा उस गेंदबाज का। के बाद सेमीफाइनल का मुकाबला होने वाला है। हम नाम जरूर बताएंगे, लेकिन कप्तान थोड़े से एक्टिव रहना होगा। जब हम अनाउंसमेंट करेंगे तब तुरंत थोड़ा आना होगा। आपसे सहयोग चाहते हम। आखिरी ओवर इस इनिंग की, तो इस मैच की 3 रनों की जरूरत जीतने के लिए 6 गेंदों में। यहां पर कप्तान को और सभी खिलाड़ियों को मिलजुल कर खेलना होगा एक प्लानिंग के साथ। 6 गेंदों में 3 रन तो आसान है, लेकिन यहां पर मुश्किल बल्लेबाजों के लिए बनाने होंगे आप लोगों के लिए, डिफेंड करते हुए जीतना चाहते हैं तो। यहां पर भारी किनारा और पहला ही झटका विराज के रूप में। बढ़िया बल्लेबाज विराज क्रीज पर मौजूद थे और उसी को वापस भेजते हुए गेंदबाज मिस्टर नितेश। बढ़िया शुरुआत, पहले गेंद पर बड़ा झटका साई शक्ति वॉरियर्स को दिया है। सिर्फ 3 रनों का लक्ष्य था 6 गेंदों में। अभी एक गेंद तो कट गई है, 5 गेंदें बची हुई है। 3 रन चाहिए जीतने के लिए। यहां पर हीरो बनने का मौका नितेश के पास है। काफी लोग देख रहे हैं लाइव, हीरो बनने का मौका है उसके पास। 6 गेंदों में 3 रन चाहिए थे, उनमें से एक गेंद कटती हुई आउट होकर वापस भेज दिया है विराज को। और स्ट्राइक पर रहेंगे गौरव। गौरव टू नितेश। बढ़िया कप्तानी सावित्री वॉरियर्स के कप्तान के द्वारा। जिन्हें यहां पर उठाना जरूर चाहते थे, लेकिन दिमाग में और कुछ सोच बदली और रोक लिया गेंद को वहीं पर। लगातार 2 गेंदें डॉट। चार गेंदों में 3 रन चाहिए जीतने के लिए। जहां उठाने की कोशिश, लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं था। थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई थी और जोरदार अपील अंपायर के पास करते हुए सभी खिलाड़ी। अंपायर का फैसला देखना होगा। रनिंग तो बढ़िया की थी, भारी। जहां फिर एक बार एम्पायर रिव्यू चाह रहे हैं। थर्ड एम्पायर के पास गए हैं हमारे स्क्वायर लेग एम्पायर। एम्पायर से हम फिर एक बार सॉफ्ट सिग्नल देखना चाहेंगे। नॉट आउट अभी देखना होगा। रिव्यू जरूर मांगा है, क्या आउट है या नहीं है ये देखना होगा। बढ़िया बॉलिंग नितेश द्वारा। क्या मैच हो रही है, हालांकि मैच तो फाइनल है नहीं, लेकिन फाइनल से भी कोई कम नहीं जिस तरह से मैच चल रही है। बढ़िया कप्तानी सावित्री वॉरियर्स के कप्तान द्वारा। गेंदबाजों को अच्छे समय पे जिस गेंदबाज की जरूरत थी उसी को लाया है और फायदा भी जरूर मिला। 18 गेंदों में 21 रनों की जरूरत थी जीतने के लिए और उसी को यहां पर चेस करते हुए मुश्किल हो रही है।
दोनों टीम की दिल की धड़कनें तेज धड़क रही है। क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, कौन जीतेगा कौन नहीं। दोनों के बीच उतनी ही टक्कर हो रही है, इक्वल। और थर्ड अंपायर का इशारा आ गया है, नॉट आउट दे दिया है। यहाँ पर एक बल्लेबाज के लिए भाग्य का साथ मिला, अच्छा रनिंग की थी उन्होंने, पहुंच गए। सॉफ्ट सिग्नल भी नॉट आउट था। मैच तो टाई हो चुकी है, 1 रन चाहिए 3 गेंदों में। बिल्कुल आसान नजर आ रहा है साई शक्ति बल्लेबाजों के लिए। सिर्फ 1 रन चाहिए। देखना होगा क्या सिंगल के साथ मैच को फिनिश करना चाहेंगे या बड़े हिट्स के साथ। आखिरी गेंद नितेश द्वारा बढ़िया गेंदबाजी की थी, उनके लिए शायद 7-8 रन भी बच जाते तो कुछ कारनामा जरूर करते। सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर लाए हैं, कप्तान ने सिर्फ लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पीछे रखा है। आखिरी गेंद इस इनिंग की। यहाँ पर नीतीश के दिमाग में कुछ चल रहा था, यहाँ पर बल्लेबाज को रन आउट करने का मौका ढूंढ रहे थे। सिर्फ 2 खिलाड़ी फील्डर दायरे के बाहर है। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन आसानी से बड़ा हिट भी खेलकर मैच को फिनिश कर सकते हैं। और उठा दिया जरूर था लेकिन संपर्क भी नहीं हुआ। और इसी के बीच 1 रन पूरा करते हुए जीत लिया है पूरे मैच को साई शक्ति वॉरियर्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बढ़िया बल्लेबाजी की। गेंदबाज तो टूट पड़े थे आपके ऊपर, फिर भी आपने मैच जीत लिया है। ओवर टू